ایک غریب نے صرف ایک پیالی پانی اور سوکھی روٹی سے ایسی مہمان نوازی کی کہ قسمت اس پر فدا ہو گئی۔ چلے تھے پناہ دینے، مل گیا خزانہ۔ ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے اور عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، آخر تک دیکھو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ بغداد کے کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا جبکہ چھوٹا بھائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ بڑے بھائی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مال اور جائیداد کی فراوانی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس ایک خستہ حال مکان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی قناعت پسند تھا۔ وہ روکھا سوکھا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ امیروں کی طرح اس کے دل میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے سکون اور صبر کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ بڑے بھائی کا نام احمد تھا جبکہ چھوٹے بھائی کا نام علی تھا۔ علی نیک دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کے گھر میں جو بھی آتا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرتا۔ اس کے برعکس بڑا بھائی احمد مالدار ہونے کے باوجود بہت کنجوس تھا۔ گھر میں آئے مہمان کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے اور غریب رشتہ داروں کا آنا وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ اس کے پاس اس کے مال کی وجہ سے آتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات کی خاطر۔ وہ اپنے بھائی کا بھی اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا اور وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بستی میں ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے احمد کا عالی شان گھر دیکھا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک کی آواز سن کر احمد باہر آیا۔ بزرگ احمد سے کہنے لگا، بیٹا، کیا تم مجھے ایک دن کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہو؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بھوک بھی لگی ہے۔ احمد نے جب بزرگ کی بات سنی تو حقارت سے کہنے لگا، بوڑھے شخص، تجھے یہ محل نما گھر سرائے لگتا ہے؟ میرے گھر میں تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بستی میں تمہارے جیسے اور بھی بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، تم کسی کے بھی گھر چلے جاؤ۔ بلکہ تم ایسا کرو، وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے، اس میں علی نامی ایک شخص رہتا ہے، وہ تمہیں ضرور رکھ لے گا۔ بزرگ کو معلوم ہو گیا کہ احمد بہت کم ظرف انسان ہے، اس لیے وہ فوراً اس کے دروازے سے چلا گیا اور سیدھا علی کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو علی خوشگوار موڈ میں باہر آیا۔ علی بزرگ سے پوچھنے لگا، جی بابا جی، کیسے آنا ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بزرگ مزید کچھ کہتے، علی نے کہا، بابا جی آپ اندر آ جائے، باقی باتیں اندر بیٹھ کر لیں گے۔ علی نے بزرگ کو اندر بٹھا لیا اور ایک پانی کا پیالہ پیش کیا۔ بزرگ نے پانی پیا اور بولے، بیٹا، میں اس بستی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، کل صبح ہوتے ہی میں روانہ ہو جاؤں گا۔ علی بزرگ کی بات سن کر ادب سے کہنے لگا، بابا جی، آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھی، آپ یہاں جتنی دیر چاہی رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوا۔ شام کے وقت علی نے بزرگ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانے میں صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ تھا۔ یہ دیکھ کر بزرگ سمجھ گیا کہ علی کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کا دل بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہے۔ بزرگ کو اس کی مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ اس نے خوشی سے وہ روٹی کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بزرگ علی سے کہنے لگا، بیٹا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس میں شامل کر لوں تاکہ تمہارے حالات کچھ بدل جائے۔ جس پر علی کہنے لگا، بابا جی، میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ مجھے کس کام میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگ دھیمی آواز میں کہنے لگا، بیٹا، آج سے 40 سال پہلے میں اسی بستی میں رہا کرتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس مال اور دولت کی فراوانی تھی۔ میرے پاس بہت سا سونا اور اشرفیہ موجود تھیں۔ مجھے ایک ضروری کام سے یہاں سے دور ایک بستی جانا پڑا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا، لیکن اتنا بڑا خزانہ گھر میں چھوڑ کر سفر پر نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے لیے وہ کام بھی بہت ضروری تھا اور مجھے چوروں کا بھی خدشہ تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ خزانہ قریبی جنگل میں دفن کر دوں۔ مجھے یہی بہتر لگا۔ میں نے اپنا خزانہ لیا اور جنگل میں پہنچ کر ایک برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر میں گھر سے ضروری سامان لے کر دوسری بستی کو روانہ ہو گیا۔ میرے پاس اس وقت رقم نہیں تھی، البتہ سونے کی ایک اینٹ موجود تھی جسے میں سونار کی دکان پر بھیج کر رقم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ان پیسوں کو ضروری کاموں میں لگا سکوں۔ میں بستی میں ایک سونار کی دکان پر پہنچا اور اسے اپنی سونے کی اینٹ دکھائی، مگر سونا دیکھ کر سونار کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے مجھے رقم دینے کے بجائے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔
और ना करते करते झूठे इल्जाम में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने 40 साल जेल में गुजारे और अब अपनी सजा पूरी करके वापस इस बस्ती में आया हूँ। अब मैं अपने इस खजाने को निकालना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इस खजाने के निकालने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दूंगा। अली बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मदद करने पर राजी हो गया। बुजुर्ग ने वो रात अली के घर गुजारी और सुबह सूरज निकलने से पहले लोगों की नजरों से बचते बचाते वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर बुजुर्ग ने एक नक्शा निकाला और रास्तों को गौर से देखने लगा। नक्शे पर जो निशानदेही की गई थी इसके मुताबिक वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर बुजुर्ग अली से कहने लगा, यही वो दरख्त है जिसके नीचे मैंने खजाना दफन किया था। तुम यहां से 2 हाथ जमीन खोदो। अली ने फौरन खुदाई के लिए औजार निकाला और जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में इसे एक संदूक नजर आया। इसने औजार एक तरफ रखा और संदूक बाहर निकालकर बुजुर्ग के हवाले कर दिया। फिर वो दोनों संदूक लेकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने संदूक खोला तो वो सोने की ईंटों और अशरफियों से भरा हुआ था। ये देखकर अली हैरान रह गया। बुजुर्ग ने फौरन इस खजाने का आधा हिस्सा अली को दे दिया और बाकी आधा संदूक में रहने दिया। बुजुर्ग अली से कहने लगा, बेटा, इस सोने को एहतियात से इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह किसी मुसीबत में फंस जाओ। मेरे पास तो सिर्फ एक सोने की ईंट थी जिसे देखकर सुनार लालच में आ गया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। तुम्हारे पास इस वक्त काफी खजाना है, इसलिए लोगों से बचकर रहना। अली को नसीहत करने के बाद बुजुर्ग ने अपना संदूक कपड़े के एक झूले में डाला और कहने लगा, ये खजाना मेरे किसी काम का नहीं है, मैं ये खजाना गरीबों में तकसीम कर दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक और जगह पर भी मैंने खजाना छुपा रखा है। मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और तब बताऊंगा कि इसे क्या करना है। ये सारी बात अली की बीवी भी सुन रही थी। अली ने बुजुर्ग को दरवाजे तक रुखसत किया और खुद कमरे में जाकर बैठ गया। फौरन इसकी बीवी आई और खजाने को देखकर खुश होकर कहने लगी, इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। अली ने थोड़ा थोड़ा करके खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अली के हालात बदलने लगे। इसने सबसे पहले अपने पुराने घर की जगह एक बहुत बड़ा नया घर तामीर किया। इसके घर में जरूरी अशिया की फरावानी हो गई। इतना अमीर होने के बावजूद अली में जर्रा बराबर भी गुरूर नहीं आया। इसके घर जो भी मेहमान आता वो इसकी पहले से बढ़कर खातिर मदद करता और उनकी दिल खोल कर मदद भी करता। बस्ती के गरीब लोग अब पहले से भी ज्यादा अली की इज्जत करने लगे। अली के अमीर होने की खबर जब इसके बड़े भाई अहमद को मिली तो वो अपनी बीवी को लेकर इसके घर पहुंचा। अली के नए हालात को देखकर वो हैरान रह गया। अहमद ने अली और इसकी बीवी को मुबारकबाद दी। इसके बाद दोनों भाइयों की बेगमात आपस में बातें करने लगी कि अचानक अली की बीवी के मुंह से निकला, हमारे पास अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अहमद की बीवी बहुत चालाक और मक्कार औरत थी। घर वापस जाकर वो अपने शौहर से कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा भाई कैसे अमीर हुआ है। इसने जंगल से कोई खजाना निकाला है और जंगल में अभी और भी खजाने दफन हैं, जिसे निकालकर वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस बस्ती में कोई हमसे ज्यादा अमीर हो। तुम किसी तरह इस जंगल से वो खजाना तलाश करने की कोशिश करो ताकि मैं अली की बीवी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। अहमद अपनी बीवी से कहने लगा, इतने बड़े जंगल से खजाना तलाश करना आसान नहीं है। मुझे लगता है वही बुजुर्ग जिसे हमने अपने घर से निकाला था, इसी ने अली को खजाने का राज बताया होगा। वो बुजुर्ग इससे पहले कभी भी बस्ती में नजर नहीं आया और इसके जाने के फौरन बाद अली अमीर हो गया। अहमद भी नहीं चाहता था कि इसका भाई इससे ज्यादा अमीर हो। इसने भी वो खजाना तलाश करने का फैसला कर लिया जो कि दरअसल इसका था ही नहीं। इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये अमल चोरी के जुमरे में आता है। इसके जहन पर सिर्फ खजाने का लालच सवार था। अब वो हर लम्हा अपने भाई अली की जासूसी करने लगा। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग दोबारा इसी बस्ती में आया तो अहमद ने इसे गिल्ली से गुजरते हुए देख लिया। अब अहमद इस बुजुर्ग की हर नकल और हरकत पर नजर रखने लगा। वो बुजुर्ग सीधा अली के घर के दरवाजे पर पहुंचा और अली का नया बड़ा घर देखकर बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने अली के दरवाजे पर दस्तक दी। अली फौरन बाहर आया और बुजुर्ग को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अली ने बुजुर्ग को अंदर आने को कहा, लेकिन बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता।
तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चुल्लू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अली फौरन बुजुर्ग के साथ चल दिया। वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। अहमद चुपके चुपके उनका पीछा कर रहा था। बुजुर्ग अली से कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के लिए इस बस्ती में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें इस दूसरे खजाने का राज बताकर जा रहा हूं, जो इस जंगल में एक और जगह दफन है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल लेना और इसे अपने पास महफूज रखना। फिर जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि इस खजाने का क्या करना है। बुजुर्ग ने अली को खजाने की जगह की निशानदेही कर दी। अहमद ये सारा मंजर छप कर देख रहा था। इसने भी इस जगह को ज़हन नशीन कर लिया और खुशी खुशी घर वापस लौट गया। घर जाकर इसने अपनी बीवी से कहा, मुझे खजाने का राज मिल गया है, अब बहुत जल्द मैं वहां से खजाना निकाल लूंगा। अहमद की बीवी बहुत खुश हुई और गुरूर से कहने लगी, अब इस बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार घर हमारा होगा। अहमद की बीवी बेवकूफ थी। इसी गुरूर में वो अली के घर गई और इसकी बीवी से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे ज्यादा अमीर अब हम ही होंगे, क्योंकि मेरे शौहर को भी जंगल में एक और खजाने की जगह मालूम हो गई है, जिसे निकालकर हम तुम लोगों से फिर से आगे निकल जाएंगे। वो अपनी जलती किट्टी बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई। जब अली जंगल से वापस घर आया तो इसकी बीवी ने कहा, अहमद की बीवी कह रही थी कि इसके शौहर को भी जंगल में खजाने की जगह मालूम हो गई है। ये सुनकर अली हैरान हुआ और कहने लगा, इसे जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला? अली की बीवी को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई और वो कहने लगी, पिछली बार जब आपके भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी मुझे नीचा दुखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। अली गुस्से से कहने लगा, बेवकूफ़ औरत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि खजाने के बारे में किसी से कोई बात ना करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे बुजुर्ग के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया है। इससे पहले कि वो वहां से खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही जाकर वो खजाना महफूज करना होगा। तुम अब अपनी जुबान बंद ही रखो। इसी रात अली जंगल में गया और खजाना वहां से निकालकर घर में लाकर महफूज कर लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले अहमद उठा और जंगल पहुंचकर खजाने की जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद जब इसने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था तो वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा, लगता है मेरा भाई बहुत चालाक निकला। शायद इसे मेरी इस हरकत की खबर हो चुकी है और वो मुझसे पहले ही खजाना ले गया है। दूसरी तरफ अहमद की बीवी घर पर अकेली थी। इसी दौरान कुछ चोर उनके घर में दाखिल हो गए और सारा कीमती सामान और माल व दौलत लेकर फरार हो गए। जब अहमद घर वापस पहुंचा तो इसका चेहरा उतरा हुआ था और इसकी बीवी का हाल इससे भी बुरा था। वो एक दूसरे को परेशानी में देखकर और ज्यादा हैरान हो गए। अहमद अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर क्यों हवाइयां अलिफा रही हैं? अहमद की बीवी कहने लगी, अब के जाने के बाद घर में चोर आ गए थे और घर से सब कुछ ले गए हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अब बताइए, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? खजाना किधर है? इस पर अहमद ने अपना सर पेट लिया और कहने लगा, खजाना वहां पर मौजूद नहीं था, शायद मेरे भाई ने वहां से खजाना पहले ही निकाल लिया है। ज्यादा मालदार होने के चक्रों में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने इस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी ही नहीं, और इसको हासिल करने के चक्रों में हम अपने माल से भी हाथ धो बैठे हैं। ना तुम हसद करती और ना हम यहाँ तक पहुंचते। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग दोबारा अली के घर आया। अली ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत मक्कार है और इसे इसके किए की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना अली को दे दिया और इसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा? अली ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि अब कहीं भी ना जाए और अब उधर मेरे पास ही रहे। बुजुर्ग ने अली की बात मान ली। अली ने सारा खजाना गांव के गईबों में बांध दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहमान नवाजी और सब्र व कनात हमेशा इंसान को इज्जत, सुकून और बरकत अता करते हैं, जबकि लालच, हसद और खुदगर्जी ना सिर्फ इंसान को जलील और रुस्वा करती है, बल्कि इसके अपने हाथों से सब कुछ छन भी जाता है। जो चीज तुम्हारी नहीं, इसे हासिल करने की कोशिश तुम्हें तुम्हारी अपनी चीजों से भी महरूम कर देती है। लिहाजा हमेशा सच्चाई, दरगुजर और दूसरों की मदद को अपना शियार बनाए, क्योंकि असल दौलत दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा है, जो सिर्फ नेक नीति से हासिल होती है।
دوستو امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں اگلی ہی ایسی کہانی میں۔